Good morning, traders. Welcome back to your own channel, Harmonics Trading. On this pleasant Sunday morning, as committed to you all, that I am going to record one learning video for you all. So this is totally based on the voting you people have done, that what kind of video you want to learn on this weekend. So I have chosen one beautiful, very simple and interesting topic on Fibonacci retracement, which I call Fibonacci magic. So before moving further, let me just tell you that a kind of disclaimer. See, there is nothing like a holy grail in this stock market. आपको कोई भी स्ट्रेटेजी 100% प्रॉफिट बना के नहीं देती, राइट? दिस इज वन ऑफ देम. ये भी कोई होली ग्रेल नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद आप कल से ट्रेडिंग करना शुरू करोगे और आपको हर दिन हर एक स्टॉक हर एक ट्रेड में प्रॉफिट ही होगा. नो गाइस, इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी होली ग्रेल, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, राइट? सेकेंड थिंग, कैसे पैसा बनता है? अगर होली ग्रेल नहीं है तो इंपॉर्टेंस किसका होता है? सर, इंपॉर्टेंस होता है मनी मैनेजमेंट का, रिस्क रिवॉर्ड का, रिस्क मैनेजमेंट का. अगर आप ये चीजें ढंग से कर सकते हो, देन नो वन कैन स्टॉप यू मेकिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट. Guys, strategy works hardly 10 to 20% in this market, because there are thousands of strategies people are making every day and night, right? But what to follow, that up to you, that is up to you. अगर आप कोई एक चीज को फॉलो करना चाहते हो तो उसको रिगरसली एटलीस्ट मंथ्स तक ट्राई कीजिए. अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलता है, देन ओनली यू कैन स्विच ओवर टू दी अदर थिंग. बट चेक करिए कि वो स्ट्रेटेजी सही में गलत थी या अपना मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट गलत था. सो मैंने एक रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे एक वीडियो बना के रखा है. ये इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे दूंगा. इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दैट वीडियो, प्लीज वॉच इट, then go for the strategy, right? And guys, my request is, if you like the video, if you are enjoying the video series on my channel, don't forget to hit the like button. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए, because I am planning to post one learning video every weekend. I'll try my level best to post it every weekend. और अपना जो सीरीज चल रहा है स्टॉक एनालिसिस फॉर टुमारो, that will go as it is, right? So today I'm going to record this video on simple and interesting topic, which is Fibonacci retracement. I call it a Fibonacci magic. अब किसी को क्वेश्चन हो कि कैन इट बी यूज्ड ऑन इंट्राडे और ऑन स्विंग ट्रेड बेसिस, ऑन पोजिशनल? गाइस, इट कैन बी ट्रेडेड ऑन एनी काइंड ऑफ टाइम फ्रेम. You can use it intraday on 5 minutes, 15 minutes. You can take a swing trade on 1 hour chart, 2 hours chart, even on daily charts, even on weekly chart. If you are finding some beautiful retracement, you can make some positional trades as well. So let me just take you through the content of the video, what we are going to look into it. First is the basic idea of Fibonacci. What is Fibonacci? Then I'll show you how to calculate Fibonacci ratios. Guys, this is not important for you to calculate ratios on every trade. बट बड़ा बिलीव इज, अगर आप कुछ नई चीज सीख रहे हो तो आपको उसका बेस मालूम होना चाहिए. अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता तो वो चीज यूज करने का कोई मतलब नहीं है. सो क्विकली विल लुक इनटू दैट हाउ टू कैलकुलेट दोस फिबोनाची रेशियोज. उसके बाद आएगा हाउ टू ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट. यू विल थिंक दैट सबको पता है यार, ये ट्रेडिंग मार्केट में 99% पीपल नोज हाउ टू ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बट स्टिल देयर आर 1% पीपल हु डोंट नो हाउ टू ड्रॉ Fibonacci retracement, right? So we'll quickly look into that topic as well. Fourth and most beautiful part of this video is confusion while using Fibonacci. आप सबने फिबोनाची कॉन्सेप्ट सुना होगा, कई वीडियोस भी देखे होंगे, बट वहां पे जो एक कंफ्यूजन आता है कि कौन से रेशियो पे ट्रेड करना चाहिए, दैट विल बी एम्फेसाइज मोर ऑन. उसके बाद कंफ्यूजन आने के बाद उसका सॉल्यूशन क्या है? सो विल ट्राई टू लुक आउट द बेस्ट वे टू अवॉइड द कंफ्यूजन. उसके पर भी एक टॉपिक रहेगा छोटा सा. Afterwards, you will be having a question that on which stocks we can trade using Fibonacci retracement. We'll touch upon that too, and we'll show you a couple of examples on different time frame, that how can you trade on intraday, positional or a swing trade, right? Followed by a Q&A. As it is not live video, if you have any questions you can drop in the comment box, right? I'll try my best to come out with the best solution for that. So without wasting much time, let us just jump onto the main topic, right? First is, what is Fibonacci? Guys, अगर
थ्योरी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, तो गूगल पे जाके विकीपीडिया पे सर्च करोगे व्हाट इज फिबोनाची, आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी पूरा मिल जाएगा. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक. Fibonacci is nothing but a simple mathematics. That's it. That is the answer for what is Fibonacci. It's simple mathematics. कैसे होता है अगले स्लाइड पे देखेंगे. Fibonacci numbers का importance क्यों इतना है? Because Fibonacci numbers remain same in the universe wherever applied. आप अगर गैलेक्सी की बात करते हैं, आप अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, आप अगर फ्लावर्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, हर एक नेचुरल universal thing में Fibonacci numbers are existing. That is the reason why Fibonacci numbers are working absolutely great in stock market as well. Yes guys, हमको इतना ही जानना है कि Fibonacci क्या है. ज़्यादा जानना हो तो गूगल पे जाके विकीपीडिया पे सर्च कर लो, आपको पूरा थ्योरी मिल जाएगा. राइट. सो मेन पॉइंट, व्हाट आर द Fibonacci numbers and what are the Fibonacci ratios? ये आता कैसे है? हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस नंबर्स? हमको हर एक स्टॉक पे करना पड़ेगा? जी नहीं, ये एक बेसिक चीज़ है. आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहा हूँ कि फिबोनाकी नंबर्स कैसे राइज हुए हैं और यूजिंग दैट फिबोनाकी सीक्वेंस नंबर हम रेशियोज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट. सो लेट मी जस्ट टेक यू ऑन दिस एक्सेल शीट क्विकली. अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो आप फिबोनाकी नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हो. बट अगर आपको मैथमेटिक्स ही नहीं आता है और जस्ट आपको दो ही नंबर पता है, 0 और 1, फिर भी आप ये 0 और 1 को यूज करके फिबोनाकी नंबर्स निकाल सकते हैं. कैसे? फिबोनाकी नंबर्स निकालने के लिए आपको प्रीवियस दो नंबर को ऐड करना पड़ेगा. यू जस्ट नीड टू प्रीवियस टू नंबर्स and you will get your next number. So here if I add 1 plus 0, you can get 1. Right. Similarly, अगर मुझे next number चाहिए तो मुझे previous दो नंबर को ऐड करना पड़ेगा. So here I will take 1 plus 1, I'll get 2. Similarly, if I do 2 plus 1, I'll get 3. So अगर मैं इस लाइन को horizontally drag करता हूँ with the formulas, it will auto calculate all the Fibonacci numbers. Guys, this number has no end. It will go up to infinite. जब तक आप पिछले दो नंबर को ऐड करते जाएंगे तब तक आपको नया फिबोनाकी नंबर मिलता जाएगा और इस नंबर्स को हम बोलते हैं फिबोनाकी सीक्वेंस. क्लियर? वेरी सिंपल. जस्ट अंडरस्टैंड दिस. आपको स्टॉक्स में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. हमारे पास फिबोनाकी रेशियोज रेडीमेड अवेलेबल रहेंगे. हम उस टूल को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं. दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. अब आपने फिबोनाकी नंबर से सीरीज तो निकाल लिया, बट व्हाट अबाउट फिबोनाकी रेशियोज? हमको तो रेशियोज काम में आने वाले हैं ना. तो यहाँ पे हम रेशियोज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं. आप रैंडमली किसी भी एक नंबर को उठा लो. मैं जैसे 89 को यूज करता हूँ यहाँ पे. ठीक है. अगर मैं 89 को उसके प्रीवियस नंबर से डिवाइड करता हूँ 55 से, सो आई विल गेट 1.618. दिस इज गोइंग टू बी माई फिबोनाकी रेशियो. सिमिलरली अगर मैं 89 को ही लेके 34 से डिवाइड करता हूँ तो I will get one more Fibonacci ratio which is 2.618 to be very precise. One more. अगर मैं 89 को 21 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे और एक रेशियो मिलेगा which is 4.24 to be very precise. तो ऐसे अगर आप कोई भी एक नंबर लेके उसको उसके प्रीवियस नंबर से या उसके सब्सिक्वेंट नंबर से भी डिवाइड करोगे तो जो भी रेशियो आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं फिबोनाकी रेशियोज. ये हमने 89 को प्रीवियस नंबर से डिवाइड किया. अब उसके सब्सिक्वेंट नंबर से हम डिवाइड करेंगे, वो है 144. तो हमको क्या मिला? 0.618. दिस इज अ फिबोनाकी रेशियो. ऐसे ही अगर मैं 89 को डिवाइड करता हूँ 233 से, आई विल गेट 0.382 वेरी प्रिसाइसली. वो भी एक फिबोनाकी रेशियो है. और एक लास्ट में अगर मैं 89 को डिवाइड करता हूँ 377 से, आई विल गेट 0.236. दिस इज अगेन अ फिबोनाकी रेशियो. राइट. सो अगर आपको
ज़्यादा टेस्ट करना है तो आप पूरा एक सीक्वेंस बना लीजिए, जस्ट चूज ओनली वन नंबर, उसको आपके उसके प्रीवियस नंबर से डिवाइड करना शुरू करिए, उसके नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना शुरू करिए, वन बाय वन यू विल कीप ऑन गेटिंग फिबोनाची रेशियोज। अगेन गाइज, इसको भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब फिबोनाची रेशियोज के अंदर देर आर टू पार्ट्स, वन इज नोन एज फिबोनाची रिट्रेसमेंट हियर एंड द अदर वन इज नोन एज फिबोनाची एक्सटेंशन। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में ही बात करेंगे और उसके बेस पे ट्रेडिंग करना सीखेंगे। सो गाइस, जितने भी रेशियो हमको मिलते हैं डिवीजन करने के बाद, उसमें से 0 से लेके 1 तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 1, जितने भी रेशियो है उसको हम बोलेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियोज। उसमें 0 आ गया, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 0.886 एंड 1। इन रेशियो को हम बोलेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और उसके अलावा एक के ऊपर जितना भी रेशियो आता है उसको हम बोलेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, इसको एक सिंपल तरीके से मैं सिखाऊं आपको तो समझ लो कि एक चीज यहां से शुरू होती है। अगर आप यहां से बॉल को बाउंस करते हो, हवा में उछालते हो, तो क्या होता है ना, दिस इज अर्थ, लेयर ऑफ अर्थ, वो क्या करता है, वो यहां पे आके बाउंस बैक करता है। क्लियर? आपने इस सरफेस से एक बॉल को हवा में फेंका, यू हैव टॉस्ड बॉल इन द एयर, what happens, it just come back to the surface and bounces back, right? अगर ये यहां से बाउंस बैक होता है तो इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे आपके अलग अलग रेशियो होंगे, राइट? इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। और अगर आपने यहाँ से बॉल को टॉस किया और वो इस सरफेस को तोड़ के नीचे चला गया, आपके स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे चला गया, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। इन लेमन लैंग्वेज, ये एकदम सिंपल तरीके से मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से कुछ चीज़ को आपने ऊपर फेंका और नीचे आके सरफेस से वापस रिबाउंड हो रहा है ना, तो उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। और अगर इसी बॉल ने यहाँ पे आके इसको पेनिट्रेट करके नीचे चला गया तो हम उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। दैट आई शो यू ऑन द चार्ट। क्लियर? अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। So this was all about the basics, how we can calculate Fibonacci ratios, right? So let us move on to the next point. Yes. Now, how to draw Fibonacci retracement, right? So to draw a Fibonacci retracement, you have to select a recent swing. आप उसके पीछे नहीं जा सकते, आपको एक recent swing मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे if I see something is moving from here, right? अगर मैं देख रहा हूं कि कुछ चीज यहां से ऊपर जा रही है, अगर यहां से नीचे आके ऊपर जा रही है, ठीक है, देखो यहां से स्टॉक ने ऊपर जाने का एक मूवमेंट दिखाई, इट वाज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? सो अगर ये यहां से एक फॉल दे रहा है, इफ इट इज फॉलिंग डाउन, और मुझे ड्रॉ करना है कि फिबोनाची मैं कहां से कहां तक ड्रॉ करूंगा, तो मुझे, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इसके लिए मेरा रिसेंट स्विंग कौन सा है? तो दिस इज माय रिसेंट स्विंग, दिस वाज माय रिसेंट स्विंग लो एंड दिस वाज माय रिसेंट स्विंग हाई। So I can connect these 2 points while drawing a Fibonacci retracement using investing.com, Fires, Zerodha ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग व्यू, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां पे भी आपके पास Fibonacci retracement का ऑप्शन है, आप उसका रिसेंट स्विंग हाई स्विंग लो पकड़ के यहाँ पे एक Fibonacci retracement ड्रॉ कर सकते हो। Let me show you on the chart. If you don't know, we'll quickly finish it off, don't worry. So, अगर मैं यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल दिखाऊं, तो लेट मी जस्ट डिलीट इट फर्स्ट, राइट? लेट मी टेक इट हियर। अगर मैं आपको यहाँ कहीं पे दिखा रहा हूं कि देखो यहाँ पे द स्टॉक हैज स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, राइट? यस, यहाँ पे इफ यू वांट टू ऑब्जर्व दैट ये कहाँ से रिट्रेस होके वापस बाय हो सकता है, गाइस बिफोर दैट लेट मी जस्ट
गिव यू वन कॉन्सेप्ट हियर, कोई भी स्टॉक कोई स्टीप मूवमेंट नहीं देता, ऐसे नहीं बढ़ता। किसी भी स्टॉक को बॉटम से टॉप तक जाने के लिए बीच में एक जिगजैग पैटर्न बना के ही जाता है। ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो ये जहां जहां पे छोटा छोटा एक फॉल आ रहा है अप ट्रेंडिंग स्टॉक में, उसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। दिस इज नॉट अ फॉल, दिस इज रिट्रेसमेंट, एंड दिस इज वेयर रिटेल ट्रेडर्स गेट ट्रैप। जब भी वो थोड़ा सा फॉल देखते हैं ना, यहाँ पे वो एग्जिट कर देते हैं, but still there is an up move up pending there, right? So uh, never ever exit the trade before checking 100% without whether it is a retracement or a fall, right? So यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपको यहाँ पे देखना है कि ये स्टॉक कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, तो मैं क्या करूंगा, उसका एक रीसेंट स्विंग लो और रीसेंट स्विंग हाई लेके यहाँ पे, यहाँ से लेके एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ऑप्शन है, ये लेके मैं बॉटम से लेके टॉप तक उसको कनेक्ट कर दूंगा। क्लियर? सो यहाँ पे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के बाद यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज ओवर हियर। हमने क्या सीखा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट 0 से लेके 1 तक। सो हम 1 के नीचे की चीज को यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ तक ही ऑब्जर्व करेंगे कि इस बीच में मुझे कहाँ कहाँ ट्रेड करना है। ठीक है, so this is just a basic thing how to draw Fibonacci retracement, right? This was just for them who were not able to draw these things, right? So let's move on to the next point. So this was all about Fibonacci retracement, how to draw. Now next thing, now हमने सीखा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर देर आर 7 रिट्रेसमेंट रेशियोज, राइट? 0, 0.236, 0.5, 0.618, 0.786, 0.886 एंड 1। सो इट्स अ काइंड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सारे के सारे 4 ऑप्शन एकदम पास पास में एकदम क्लोज है, तो किसको चूज करें किसको ना करें। So this is what I was talking in the beginning of the video, that confusion while using Fibonacci retracement. So here we have multiple Fibonacci ratios as below, जैसे मैंने आपको 7 बताया, ठीक है? तो ये 7 देख के दिस आर वेरी क्लोज, राइट? सो ये देख के क्वेश्चन माइंड में आता है कि अपना स्टॉक कौन से रेशियो से एक रिट्रेसमेंट देगा। अगर मैं सातों के सातों चीज को फॉलो करने जाऊंगा या जाऊंगी, सो आई विल बी बिट कंफ्यूज दैट विच स्टॉक आई एम गोइंग टू वॉच थ्रू आउट द डे, right? If you're waiting for all 7 ratios for getting retracement, you will miss 6 hours trading day, right? So out of the 7 ratios, which one we should use to trade? Is it advisable to trade on all the Fibonacci ratios? If no, then why? If yes, then why? Let us check first no, right? ये सातों के सातों चीज पे फोकस करना एडवाइजेबल नहीं है। क्यों? कि अगर आप 7 रेशियोज को देख के बैठ जाओगे तो आप दिन भर कुछ नहीं कर पाओगे। एक ही स्टॉक के अंदर 6.5 घंटे का ट्रेडिंग टाइम बीत जाएगा। यू वोंट बी एबल टू टेक इवन अ सिंगल ट्रेड, राइट? और अगर ये इज इट एडवाइजेबल टू ट्रेड ऑन ऑल द फिबोनाची रेशियोज? इफ यस, देन व्हाई? ये यस पे कोई भी चांस नहीं है कि एनी स्मार्ट ट्रेडर कैन फॉलो ऑल 7 रिट्रेसमेंट रेशियोज। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? लेट अस लुक एट दैट। बेस्ट वे टू अवॉइड कंफ्यूजन, we will be using only and only 2 Fibonacci ratios, which are 0.5 and 0.618। 0.618 और 1.618 को लोग गोल्डन रेशियोज भी कहते हैं। देयर इज नथिंग लाइक गोल्डन सिल्वर। एक ट्रेडर को एक सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ एक चीज़ पे कंटिन्यूस स्ट्रिक्ट होके फॉलो करके उसके ऊपर ही कुछ ऑलमोस्ट मंथ तक ट्रेड करना है और देखना है कि मुझे कितना एक्यूरेसी मिलता है। और अगर एक्यूरेसी मेरा अच्छा खासा 60+% का है तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे कैसे मिलता है और उसके ऊपर मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। गाइस, फोकस मोर एंड मोर ऑन साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट एंड योर रिस्क मैनेजमेंट, then you go for any strategy. So yes, this is my solution for you all while using Fibonacci retracement as a trading strategy or trading concept. Please use only 2 things, 0.5 and 0.618.
विच हैज़ वेरी गुड पोटेंशियल टू गिव रिट्रेसमेंट और आपको एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। देखो यहाँ पे मैंने एक एक्सिस बैंक का एग्जांपल लिया हुआ है 1 डे के चार्ट पे। यहाँ कहीं पे मैंने इसको देखा, यहाँ से रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, आई हैव जस्ट फॉलोड 0.5 एंड 0.618। देखो हाउ ब्यूटीफुली इट हैज़ रिट्रेस फ्रॉम 0.618। और अगर किसी ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद कंफर्मेशन पे ट्रेड लिया होता तो उसको मोर देन 1:3, 1:4, 1:5 का एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था, राइट। सो लेट अस मूव अहेड। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिवर्ट बैक ऑन दोज क्वेश्चंस, राइट। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, लाइक मार्केट में तो काफी सारे स्टॉक है, कौन से स्टॉक को फॉलो करना चाहिए, विच स्टॉक्स आर बेस्ट टू ट्रेड यूजिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट। My answer is there is no specific stocks which we can use to trade with Fibonacci retracement. Yes, guys, there is no specific stocks which we can use. Why? Because we can use any stock or any index. You can trade on Bank Nifty, you can trade on Nifty, you can trade on Nifty IT, you can trade on Nifty Financials. अभी तो Financials भी ऐड हो चुका है, और किसी भी सेगमेंट का कोई भी स्टॉक उठा लो और ये कॉन्सेप्ट को 0.5 और 0.618 रिट्रेसमेंट लेके उसको वहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिल जाएंगे। बट यू हैव टू स्टिक विद द रूल्स, यू हैव टू स्टिक विथ योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यू हैव टू स्टिक विथ योर मनी मैनेजमेंट। क्लियर? Let us take few stocks to understand the concept practically. थ्योरी तो कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, गूगल से भी आप पढ़ के उसको सीख सकते हो, बट जब तक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, दैट टू ऑन डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम, मैं आपको हर एक टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे एक चार्ट दिखाऊंगा, एक चार्ट आपको मैं 1 आवर चार्ट पे दिखाऊंगा, एक मैं आपको 15 मिनट्स पे दिखाऊंगा, और एक मैं आपको 5 मिनट्स पे दिखाऊंगा। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स इन द मार्केट, सम प्रीफर इंट्राडे, सम प्रीफर स्कैल्पिंग, सम प्रीफर पोजिशनल, सम पीपल प्रीफर स्विंग ट्रेडिंग। सो ये चार का एग्जाम्पल देखने के बाद यू कैन मेक आउट योर माइंड दैट हर एक टाइम फ्रेम पे ये काम करता है। अगेन अ डिस्क्लेमर फॉर द ट्रोलर्स दैट हिस्टोरिकल डेटा पे दिखाई गई चीज़ें ही अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। आप एक वीक तक लाइव मार्केट में इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने लेवल ड्रॉ करिए, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन ट्रेड फर्दर। सो लेट अस मूव ऑन टू माय फायर्स प्लेटफॉर्म, लेट अस सी दैट। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको ड्रॉ करते वक्त ही दिखाया, क्या किया था, देखो यहाँ पे आप देख लो, ये एक डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे दिखाया गया है, और डेली टाइम फ्रेम के बेस पे हमने एक्सिस बैंक पे एक ट्रेड बना सकते थे जिसने एक ब्यूटीफुली यहाँ पे 0.618 से रिट्रेसमेंट करके यहाँ से ऊपर गया है। नाउ a question comes, what can be the stop loss, right? So if you are taking a trade on 0.618, देखो उसके नीचे कौन सा रेशियो है, 0.786। टेक्निकली यू कैन यूज दिस लेवल एज अ स्टॉप लॉस, बट आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेना है, आपको स्टॉप लॉस में कुछ बफर जोड़ने के बाद ही स्टॉप लॉस लगाना है, बिकॉज ये जो लेवल है, दिस लेवल्स आर वेरी एक्यूरेट। स्टॉक क्या कर सकता है, यहाँ को जस्ट टच करके रिवर्स हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करके भाग जाएगा। सो आई ऑलवेज प्रीफर टू कीप सम बफर ओवर हियर। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू 594.7 है, मैं इसको ₹1 नीचे 593.7 के आसपास स्टॉप लॉस लगाऊंगा। और यहाँ से अगर आप देखो तो 15 + 7 22 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, उसके सामने स्टॉक ने 615 से लेकर देखो कहाँ तक का, अगर आपने 17 क्या कितना 15 22 × 2 मतलब आपने 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड पकड़ा होता तो आपको 44 पॉइंट्स विच इज समवेयर हियर, 44 मीन्स 659। देखो यहाँ पे इस कैंडल पे, इसी कैंडल पे आपको 659 ऑन द सेम डे आपको प्रॉफिट मिल सकता था। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इसको ऑब्जर्व करते हो तो ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, आपको इस लेवल को मार्क करके उसको छोटे टाइम फ्रेम विच इज 5 मिनट्स, आप उसको 5 मिनट्स पे कन्वर्ट कर दीजिए, सो दैट जब स्टॉक 0.618 को टच करके रिट्रेस करे तो आप वहां पे ट्रेड इनिशिएट कर सके। ये ट्रेड हुआ था 28 जनवरी। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन 0.618, और हम 28 जनवरी को चलते हैं, वहां पे क्या हुआ था।
28 इज हियर, राइट। 5 मिनट पे कन्वर्ट करिए ट्रेड लेने के लिए। उसके बाद 28 ऑफ जनवरी पे जाइए। सो यू कैन ऑब्जर्व व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर। देखो यहाँ पे पहली ही कैंडल ने आपके लेवल को अप्रोच किया और वहां से रिट्रेस हो चुका था। तो जब ऐसा कोई कैंडल बनता है जो आपके रिट्रेसमेंट लेवल से घूम के ऊपर जाता है, तो आप वो 5 मिनट कैंडल का एक बार हाई और लो मार्क कर लीजिए। और जब भी नेक्स्ट कोई भी कैंडल उसके हाई को क्रॉस करता है, उसके हाई को जब भी क्रॉस करता है, तब तब वो स्टॉक में आप एंट्री बना सकते हो। एंट्री के लिए अगर आप डेली चार्ट देखते हो तो वहां पे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट के एंट्री कैसे करें। तो आपको वो लेवल को मार्क करके जस्ट ड्रॉप डाउन टू स्मॉलर टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स और 3 मिनट्स, विच एवर इज कन्वीनियंट टू यू, एंड वहां पे जाके उस लेवल से रिट्रेसमेंट ट्राई करिए कि इफ द स्टॉक इज गेटिंग रिट्रेस फ्रॉम देयर, immediately on that candle high you can initiate your buy trade. दो इट इज ए पोजिशनल और स्विंग ट्रेड, आपको 5 मिनट कैंडल पे ही उसका रिट्रेसमेंट देखना है और उसके बाद आप उसको ट्रेड कर सकते हो। इफ समवन सेड आई एम नॉट कंफर्टेबल विद 5 मिनट्स, टेक अ चार्ट ऑफ 15 मिनट्स. So time frame is totally dependent on you that what time frame you are comfortable with. But आपको ट्रेड चेक करने के लिए, ट्रेड इनिशिएट करने के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ही जाना पड़ेगा. So this was the example I have shown of Axis Bank on daily time frame. Let us now look at on the different time frame. Reliance Industries. Let us check on 1 hour time frame. किसी को छोटा सा स्विंग ट्रेड करना है 1-2 दिन का, कैसे करें? देखो यहाँ पे अगर मैं यहीं कहीं पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ, देखो यहाँ पे स्टॉक गिर रहा था, स्टॉक वाज इन द फॉलिंग मोमेंट, राइट। वहां से गिरने के बाद अगर मुझे देखना है कि ये स्टॉक कहाँ से रिट्रेस होके वापस शॉर्ट कर सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे उसका लेटेस्ट स्विंग हाई और स्विंग लो लेके उसको टॉप टू बॉटम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया और यहाँ पे 0.5 और 0.618 पे ही फोकस करना है। अगर वो 0.5 से रिट्रेस होकर गिर जाता है तो उसको ही पकड़ के आप वहीं पे शॉर्ट कर सकते हो। और अगर यहाँ से बुलिश, देखो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना, फिर भी रिट्रेसमेंट नहीं था, अगर यहाँ पे आने के बाद भी और एक ग्रीन कैंडल बनता है इसके ऊपर तो हम उसको शॉर्ट नहीं करते, वी वुड हैव शॉर्टेड नियर बाय 0.618। बट देखो यहाँ पे देखिए तो 0.618 को अप्रोच किए बिना ही ये स्टॉक ऑन द वेरी नेक्स्ट कैंडल यहीं से गिरना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट पे जाके रिट्रेसमेंट देखना शुरू करोगे तो आप उसके नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल को स्टॉप लॉस बना के उसको वहीं पे शॉर्ट कर देते। देखो यहाँ पे 2041 और 2057 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। रैंडम स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो आपको कैलकुलेट करना है। 16 इंटू 32, अगर आप 32.1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके इसको ट्रेड करना चाहते हो, देखो यहाँ से वो फॉल करके कहाँ तक नीचे आ गया। गाइस दिस सेम्स वेरी सिंपल बट उतना ही इफेक्टिव है। मार्केट में मल्टीपल इंडिकेटर्स डाल डाल के अगर आप देखना चाहोगे तो आप इतना सक्सीड नहीं हो पाओगे। देखो यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का हम इस्तेमाल नहीं करते। आई यूज सम इंडिकेटर्स फॉर सम डिफरेंट ट्रेडिंग बट दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट हियर जब मैं इस स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ना तो मैं RSI का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना तो मैं MACD यूज़ कर रहा हूँ, ना तो मैं बॉलिंजर बैंड यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको यूज करना है तो करिए, बट डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट योर ट्रेडिंग सिस्टम बाय पुटिंग मल्टीपल इंडिकेटर्स, राइट। यहाँ पे आप और एक काम कर सकते हो, अगर स्टॉक चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज करके आप 0.618 और 0.5 को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस है या नहीं। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, दैट विल बी आइसिंग ऑन द केक। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो आप उसको आंख बंद करके फिक्स स्टॉप लॉस के साथ उसको बाय या शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑन 1 आवर। लेट मी मूव ऑन टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, अदानी पोर्ट्स। हम उसको 15 मिनट्स पे चेक करेंगे। लेट्स लुक एट दैट। किसी भी टाइम फ्रेम गाइस, कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर लो, कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम कोई भी टाइम फ्रेम पे काम करता है, यू जस्ट नीड टू फॉलो रिगरसली फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, राइट। देखो यहाँ पे स्टॉक वॉज फॉलिंग, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, तो कहाँ से रिट्रेस कर सकता था, हमने 0.5
और 0.6 पे एक लाइन बना के रख दी, द स्टॉक है स्टार्टेड रिवर्सिंग फ्रॉम 0.5 इटसेल्फ। देखो यहाँ पे बड़ी एक वीक बनी हुई है, तो इसी कैंडल को यूज करके आप शॉर्ट कर सकते थे फॉर एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हमको यहाँ पे भी एक 1:2 का अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है। टाइम फ्रेम वॉज 15 मिनट्स गाइज, नोट दिस। मैं आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम पे यूज करना सिखा रहा हूँ। एंड फाइनली वन मोर चार्ट, HDFC ऑन 5 मिनट्स। जो लोग छोटा सा स्कैल्प करना चाहते हैं उसको भी ये स्ट्रेटेजी पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। कैन यू सी हियर, कैन यू सी हियर 0.5 रिट्रेसमेंट। अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होता इसके ऊपर 4 या 5 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस पकड़ के, यहाँ से उसने कितना बड़ा फॉल दिया होगा। अपना रिस्क रिवॉर्ड फिक्स कर लो गाइज, फिक्स योर रिस्क रिवॉर्ड, फिक्स योर रिस्क, फिक्स योर कैपिटल। हर एक मनी मैनेजमेंट चीज़ को एक फिक्स कर लो, हर एक स्टॉक को सेम स्टॉप लॉस पॉइंट्स नहीं, स्टॉप लॉस आपका रिस्क के हिसाब से डिफाइन होगा। वो रिस्क कितना है उस हिसाब से ही अपना क्वांटिटी ले लो। कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज़ कर लो, वॉट एवर इज कन्वीनियंट टू यू। 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर्स, 2 आवर्स, 1 डे। मैंने आपको ये 4 एग्जाम्पल दिखाए ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। यू कैन डू योर ओन बैक टेस्टिंग यूजिंग योर ओन चार्ट, योर ओन इंडेक्स, राइट। तो कहीं पे भी किसी भी जगह पे ये कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, you can drop it in the comment box without having any hesitation. Don't feel that somebody will laugh at you because you are asking very dumb question. It's nothing like dumb. You can write down on the comment box. Within 24 hours I'll try my best to give a reply on that. So guys, thank you so much for watching this video. If you have liked this video, please share it with your family members, your friends, your colleagues who also can take benefit out of which. Believe me, छोटी छोटी चीज़ें हैं, very simple है. I am not using any so-called indicators like big shots can do, but छोटे निवेशक को, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए छोटी चीज़ ही चाहिए। आप ये सिंपल वीडियोस को बार बार देखिए, उसके बाद उस पर बैक टेस्टिंग करिए और बेस्ड ऑन दैट आप छोटी क्वांटिटी पे ट्रेडिंग चालू करिए। एंड इफ़ यू फील सक्सेड, प्लीज़ write in the comment box so that others also can get motivated. You can write me on Telegram @harmonix trading 111. कभी भी कोई भी query हो, you can reach out to me. Till then, stay tuned for my next video. Most probably next weekend I'll try my best. You can suggest me what kind of video you want to see next. Based on that, we can make some video. Till then, have a great weekend. Have a safe life with you and your family members. Till then, thank you so much. Goodbye. Have a great trading week ahead. Thank you so much.